it will be XY. तो मैं तुम्हारा ना स्किन का भी सेल लूँ ना, मैं तुम्हारा स्किन का सेल लिया जो एक्टिवली डिविजन स्टेट में है और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, कैरियोटाइप उसका लिया, तो उसमें सारे XX होंगे फीमेल बॉडी सेल पे भी, and for male it will be XY. Now यहाँ तक 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे. Please look at this. The sex cell just has 23 chromosome, no pairs. इसमें भी जो 1 to 22 होंगे, they will be what? The normal, autosomal. They will be normal. But the last pair will be either X or X in female or either वो जो 23rd pair है वो X या Y. अब इसका फंडा समझो. I said sperm cell in male, right? So the sperm cell in males can either contain X chromosome or Y chromosome. मतलब इतने सारे sperm cells हैं, उसमें से कुछ में X chromosome होगा, कुछ में Y होगा. But in case of female it is only X. X या X ये मतलब same ही है. ठीक है? तो इससे आता है कुछ sex determination. Have a look at this. वो haploid cells है ना, half the number of chromosomes are only there. तो क्यों ऐसा? क्योंकि मेल और फीमेल के बीच फ्यूज होगा और जाइगोट बनाएगा. So if I say that the sperm cell will fuse with the egg cell, they will form a zygote. अब सोचो कि इसमें मैंने बताया कि sperm cell में या तो X क्रोमोसोम होगा या तो Y क्रोमोसोम होगा, पर यहाँ तो X ही है. So now look at this. If at all the sperm cell containing X chromosome fertilizes the egg cell containing X, what will be the result out of this? Girl. XX, that is female. So the child born will be a female, or the offspring would be female. Here, if at all the sperm cell is containing Y chromosome, it fertilizes the egg cell with X chromosome. It will result into XY, that is a male child. मैम ने हमें क्लास में दिखाया था कुछ तो जो XX लिखा था, इधर XY लिखा था, and then उसमें दिखाया था 50-50 चांसेस ही होता है. हाँ, सब 50-50 चांसेस हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे सुनो मैम ने बॉक्स में वही बड़ा बॉक्स बना हुआ है. ठीक है, उधर हाँ ये मैं बताती हूँ बॉक्स में भी अगर उसको दिखता है. लोग वापस देखो ये जिसको नहीं समझा. The sperm cell and the egg cell are sex cell. Neil, I'm going to ask you to revise this everything for me, so pay attention. The sperm cell and the egg cell are called as haploid cell. क्यों? क्योंकि उसमें 23 क्रोमोसोम ही होते हैं. ठीक है? तो 23 और 23 मिला के 46 जाइगोट में बना ही लेगी. Let's talk about sperm cell. Sperm cell either will have X chromosome या it will have Y chromosome. ठीक है? But female में वो X ही होता है. So now, if at all one sperm cell which is containing X chromosome is combining with the X chromosome of egg cell, it will result into XX, and XX stands for female. And if at all the sperm cell is containing Y chromosome fertilizes the egg cell with X, तो X और Y क्या हो जाएगा? Male. So it is the father who determines the sex of the child and not the mother. और अपना ट्रेडिशन वाइज क्या चलता आ रहा है? पुराना ट्रेडिशन ऐसा था ना कि if the girl child is born then the woman was blamed for it. वो scientifically wrong है. The sex of the child depends upon the father and not mother because it is the sperm cell that may contain X or Y. फीमेल में तो X ही है, कहाँ से Y आएगा? ठीक है? Either X और Y का चक्कर है. और ऐसा कुछ नहीं है या कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि एक फैमिली में पहले X होगा फिर Y होगा, ऐसा कुछ नहीं होता. You might see that in one family, the couple might have 3 daughters or 3 sons in a row, or maybe 1 son, 1 daughter. So it is all random. Whichever sperm will fertilize the egg first, उसमें जो भी chromosome है, that will decide the gender of the child. Okay, so it's purely random. Okay, so 50-50 chance होता है इसका. Okay, all right. So with this, we kind of end the karyotype. I hope this is clear to you, please. ठीक है, ये प्लीज समझना चाहिए और इसके लिए ना बहुत कंफ्यूजन होता था, तो प्लीज याद रखो. ओके, तो और मैं अगर तुमको बताऊं, ये एक चीज मुझे बताना था. 1 सेकंड,
दिस इज अ कैरियोटाइप ऑफ विच सेल, बॉडी सेल या सेक्स सेल? देख के बताओ, बॉडी सेल। कैसे पता? पेयर। सोचो अगर इसमें से एक एक गायब हो जाए, हर एक पैर में से एक एक गायब हो जाए, ब्रिलियंट, समझ आया? तो मुझे बताओ कि इसमें से भी तो एक गायब हो जाएगा ना? ठीक है, हो जाएगा ना? तो इधर एक्स और इधर एक्स, इस केस में फीमेल में, और यहाँ पे इधर एक्स और इधर वाई। दिस शुड बी वेरी क्लियर। सो यू डोंट हैव पेयर, यू हैव जस्ट सिंगल सिंगल। तो एक मम्मी से आएगा, एक क्रोमोसोम पापा से आएगा, और वो दोनों क्या बनाएंगे? अच्छा, तो दोनों एक ही बैठ जाएगा। तो अगर x हो गया तो x y हो जाएगा। Now listen, ये थोड़ा लास्ट करते हैं, एक ब्रीदर लेते हैं इसके बाद। I said that maternal chromosomes and paternal chromosomes will be there in the zygote. ठीक है? ऐसा मत लिख दो मुझे। ये स्पर्म सेल में कितने हैं? 23 क्रोमोसोम, हर एक का एक 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 एक, ठीक है? तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 22 प्लस x या 22 प्लस y, ठीक है? ये x सेल में कितना होगा? 23। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 22 प्लस x। मुझे बार बार रिपीट नहीं करना, इसीलिए मैं सिर्फ लिखना भूल गई मैं। ओके, ये समझा? क्या बता रहा था? हाँ छोड़ो, 22 प्लस x, 22 प्लस x, 22 प्लस y, ये हो गया। ओके, मुझे क्या ही बताना था? क्या पूछा था तुमने? गायब हो गया। रिकॉर्डिंग चेक कर लो। छोड़ो, ऐसे ही थोड़ा बहुत बात है। So anyways, if at all this and this are combining, तो ये सिर्फ 22 है, ये सिर्फ 22 है, ठीक है? तो ये कंबाइन हो जाएंगे ना, इसका और इसका पेयर बन जाएगा। एक क्रोमोसोम इधर से आ रहा है, एक क्रोमोसोम यहाँ से आ रहा है, हर एक में। So when they arrange themselves in pairs, तो क्या ही देख पा रहे हो? क्या देखूं मैं? ये दिख रहा है? One from paternal, one from paternal. Let me write, draw this in some other color तो पता चलेगा, ठीक है? वो 22 प्लस y क्यों लिखा है? अरे baby, that last can be y also ना? या तो x होगा या तो y होगा। मेल है ना, वो स्मॉल से लिखा है। तो ये एक पैटर्नल से आया, ये एक पैटर्नल से, जब ये फ्यूजन हो रहा है, ठीक है? ये जब फ्यूजन हो रहा है, so when they arrange themselves into this kind of pair, zygote में तो 46 नंबर हो जाएगा ना, रिस्टोर फर्टिलाइजेशन हो गया तो। So when one is maternal chromosome, one is paternal, and they are same in size and shape, so they will arrange themselves into pairs. This pair is called as homologous chromosome या homologous pair of chromosome. मतलब after fertilization, whenever the maternal and paternal different chromosomes pair up with regards to same in size and structure and shape, they are called as homologous pair of chromosomes. पर इसके पहले वाले भी जब हम लोगों ने वो साथ में रखे थे, साथ में वो भी वही है। पेयर मतलब वो सेम होना चाहिए, ठीक है? इट शुड लुक सेम। अभी तुम मुझे कैरियोटाइप का वो सेकंड पेयर मत बोलना कि वो टेढ़ा दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है? देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के उसको हम पहचान सके। तुम उसको नहीं पहचान सकोगे, उसका जो सेंट्रोमियर है ना, उसका पोजीशन तुमको मालूम होना चाहिए, वो सब देखा जाता है। सो कैरियोटाइप इज अ वास्ट स्टडी। तुमको देखने में लगेगा ये आड़ा टेढ़ा है, इसको साथ में क्यों रखती है, बट मोर ओवर दे बिलोंग टू वन पेयर। वो दो जूता जो होता है वो सेम होना चाहिए ना, आजकल तो अलग अलग भी आता है। ये होमोलोगस पेयर नहीं है, ठीक है? इसका जूता देख लेना बाद में, ये एक्सेप्शन है। बट एनीवेज यू गॉट द पॉइंट। होमोलोगस क्रोमोसोम का डेफिनेशन प्लीज मार्क करो, बहुत फेवरेट क्वेश्चन टीचर्स का आ सकता है डिफाइन के लिए। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, टेक अ लिटिल ब्रीदर एंड देन वी स्टार्ट अगेन। प्लीज कंटिन्यू, बहुत अच्छे से भाग रहे हो। Do you find homologous pair of chromosome, my dearies? मिला डेफिनेशन? एक ऊपर पैराग्राफ है जिसमें लिखा है क्रोमोसोम है होमोलोगस पेयर, उसके लास्ट 3 लाइन उसका डेफिनेशन है। प्लीज मार्क करो उसको, इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्टिंग देखते हैं। 2 मिनट सिर्फ एक पानी पी लो, फिर कैरेक्टर ट्रेट देखना है, थोड़ा लाइट जाएगा। हाँ,
2 मिनट। हाँ यार, अरे हाँ मैं आपसे अपना